The information provided by the speaker, presenter on the IDSC platform is for general information purposes only. All information is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of this information. নমস্কার, সুজিত চট্টোপাধ্যায় এই চ্যানেলে ফেস টু ফেস অনুষ্ঠান নিয়ে আবার চলে এলাম শনিবার বেলা 2টোয়। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, তিলে তিবেলে তিলোত্তমা, আর বিন্দু বিন্দু জলেই নাকি সিন্ধু নদীর সৃষ্টি হয়েছিল। সঞ্চয় মানুষের কিন্তু একটা জন্মগত অভ্যাস এবং অধিকার, আজ নয়। প্রথম যখন না মানুষ প্রায় মানুষ থেকে পুরো মানুষ হলো, সে সময় কিন্তু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা খাদ্য সংগ্রহ করে রাখত। এই যে খাদ্য সংগ্রহ করার যে জেনেটিক বিষয়টি, এটা পরবর্তী জীবনে, আধুনিক জীবনে কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল যে সঞ্চয়টা জীবনের খুব একটা অপরিহার্য অঙ্গ। আজকের দিনে এই 21 শতাব্দীতে এসে সঞ্চয়ের নানান রকম পথ রয়েছে, কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখা দরকার যে আয় করা সোজা, সঠিকভাবে ব্যয় করা কিন্তু কঠিন। আপনাদের সঙ্গে আজকে এমন একজন মানুষের আলাপ করিয়ে দেবো যিনি আপনার জীবনের আর্থিক পরামর্শদাতা হতে পারেন এবং আপনার জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা এনে দেবার ব্যাপারে প্রহরী হিসেবে কাজ করতে পারেন, এবং এই আর্থিক নিরাপত্তায় কিন্তু আপনার জীবনের, আপনার ফ্যামিলির জীবনের জন্য কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক হয়ে উঠতে পারে। চলুন আলাপ করে নিই। आनंद गुप्ता, नमस्कार। तो आपको तो हम थोड़ा बंगला में बोलते हैं, आप कोशिश कीजिएगा खूब बंगला में भी बोलने का। इन्वेस्टमेंट और अमानत जमा करने का जो इच्छा होते हैं, इसका स्पेसिफिक क्या उपाय है, इसके लिए तो हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। आपके माफिक कोई परामर्शदाता जिसको बोला जाता है, इसका जरूरी क्या है, ये पहले बताइए। देखिए, जैसे किसी को अगर फिट होना हो, जो फिटनेस करना हो, ठीक है, खुद से भी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ट्रेनर होता है तो वो क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है, साइंटिफिक वे। यस। और आप कहीं ना कहीं टेक्निकली 90% चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, बट वो 10% रॉन्ग करने से उसका आगे जाके इम्पैक्ट रॉन्ग आ सकता है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आप 90% खुद से मैनेज कर सकते हैं, बट अगर उसको सही तरीके से लॉन्ग टर्म तक अच्छे तरीके से करना है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। আনন্দ গুপ্তা যে ব্যাপারটা বললেন সেটা সত্যি খুব যুক্তি আছে কথাটার। তিনি বলছেন যে জীবনের মানুষ লেখাপড়া করে, তার জন্য একজন শিক্ষকের দরকার হয়। যখন তারা বডি তৈরি করার কাজ করেন তখন একজন ফিজিক্যাল ট্রেনারের দরকার হয়। ফুটবল ক্রিকেটের মাঝে একজন কোচের দরকার হয়। খেলে তো মানুষ, কিন্তু একজন কোচের দরকার হয়। তেমনি আপনার আর্থিক নিরাপত্তা আপনি কিভাবে তৈরি করবেন সেটার জন্য কিন্তু একজন কোচের দরকার হয়, আর সেই কোচের কাজটাই কিন্তু করেন আনন্দ গুপ্তাজি। আমাদের এখানে একটা ফোন নাম্বার চলছে। এই সঞ্চয় সম্পর্কে যারা এখন রোজগার করছেন বা যারা অবসর নিয়েছেন, তাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা সরাসরি কিন্তু আনন্দ গুপ্তাকে ফোন করে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিতে পারেন। আর তার সঙ্গে ওর যে ফোন নাম্বারটা যাচ্ছে সেখানেও আপনারা যোগাযোগ করে ওর কাছ থেকে কিন্তু আপনারা কিছু পরামর্শ পেতে পারেন, এবং কিভাবে আপনার সঞ্চয়কে বাড়াতে পারেন এবং নিরাপদ রাখতে পারেন সে বিষয়েও কিন্তু আপনারা সেই পরামর্শ পেতে পারেন। এখন আমি আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আসতে চাইছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে একজন লেবানিজ দার্শনিক এবং লেখক, কবি, আমেরিকান, তার নাম হচ্ছে কাহলিন জিব্বান। তিনি বলছেন টাকাটা হচ্ছে ভালোবাসার মতন, একে যদি আটকে রাখা হয় তার মানে হত্যা করা হচ্ছে, আর এটাকে যদি খোলা পথে চলতে দেওয়া যায় তাহলে সেই ভালোবাসার সজীব থাকে। প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষেত্রে বলছেন, এক্ষেত্রেও তাই। এটা হচ্ছে ওনার বক্তব্য। তা আপনি বলুন যে এখন মানুষের কাছে, যেটা সাধারণ মানুষের কাছে আমানত, ফিক্সড ডিপোজিট প্রকল্প, এইটাই তাদের কাছে বেশি লাভবান বলে মনে হয়, কিন্তু যে হারে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট ওঠানামা করছে, বিশেষ করে যারা অবসর নিয়েছেন তাদের কিন্তু জন্য খুব চাপ হয়ে যায়। এই টাকা, যতই টাকা থাকুক তার ভ্যালুটা কিছুতেই দাঁড়ায় না।
আর আপনারা যারা মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে কথা বলেন, আপনারা তো বলেন যে ওইখানে ইনভেস্টমেন্ট করাটার থেকে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড, কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডে আবার বলা হচ্ছে সেখানে নাকি অনেক ঝুঁকি আছে, তাই মানুষ সাহস পায় না, এরকম একটা প্রবাদ আছে। এটা কতটা সঠিক? देखिए, आज के डेट में इंडिया में जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई दर है वो है 6%। अगर आप एफडी में पैसा रख रहे हैं और 6% ही कमा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे, आपका वेल्थ तो ग्रो नहीं होगा। तो अब ऑप्शन था कि आप म्यूचुअल फंड में डाल के 12% 13% तक आप इनकम कर सकते हैं। बट जो भी आम मिडिल क्लास लोग हैं उनको ये डर रहता है कि म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं रिस्क है। तो रिस्क जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाता है। अगर आप एफडी भी करते हैं तो आप 3 to 5 ईयर्स टाइम देते हैं उसको, उस तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड्स को भी लंबे अवधि के लिए अगर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपका रिस्क नुल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ 5 ईयर्स का बनाइए और आप आराम से 12 to 15% तक म्यूचुअल फंड्स में जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ जिस दिन एक मिडिल क्लास समझ गया वो 6% की जगह में 12% कमा सकता है, और कमा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी 70 लाख करोड़ तक हो गई है और मोर देन 5 करोड़ इन्वेस्टर इंडिया में जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू और अपना पैसा बना रहे हैं। तो बस आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है उस रिस्क को कम करने के लिए। আপনি जो बात बोले हैं, मिनिमम 5 ईयर्स के लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी में जाना चाहिए, लेकिन ধরুন আমি যারা অবসর নিয়েছেন, যাদের বয়স ধরে রাখুন 70 আপ, তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা কবে টাটা গুড বাই করে চলে যাব তার কিছু ঠিক নেই। সেখানে আমরা 5 বছর আমাদের জন্য লং পিরিয়ড হয়ে যাচ্ছে, আমরা যদি 1 বছর বেঁচে যাই তাহলে মনে করবো এটা আমাদের জন্য বোনাস। ठीक है, তাহলে তারা কি করবে? जिन लोगों का एज बहुत ज़्यादा है वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो गया तो वो जो एसेट्स होता है वो उनके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है विदाउट हैसल फ्री। विद इन 7 डेज आपका पूरा एसेट्स आपके वाइफ के नाम पे चला जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर स्पाउस भी नहीं है, बच्चे हैं, तो बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको बेचना होगा, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आप अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हो और जिसके पास ट्रांसफर होगा वो उसको होल्ड कर सकता है और आराम से उस पर प्रॉफिट कर सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप एज ज़्यादा है तो आप नहीं उसमें इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि देखिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो आपको 6% से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12% मिलता है और 6% आप हर साल निकाल लेते हैं तो भी वहाँ पे आपका 6% ऐड ही होता रहेगा। तो आप अगर एज भी आपका ज़्यादा है आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके बाद वो एसेट्स बहुत ही ईजिली आपके वाइफ या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और वो ग्रो करते रहेगा और आपको एक सर्टेन इनकम वहाँ से मिलती रहेगी। फिक्स डिपॉजिट में जो नॉमिनी देना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में भी तो नॉमिनी देना पड़ता म्यूचुअल है, फंड में इसके बारे में कुछ बताइए। यस, म्यूचुअल फंड में विदाउट नॉमिनी आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते एज पर न्यू सेबी रूल। नॉमिनी का A to Z डिटेल्स, नॉमिनी का नाम, उनका पता, उनका पैन नंबर, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग यू हैव टू गिव, ओनली देन ही आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, सो दैट अगर आपका नॉमिनेशन नहीं है तो कल को प्रॉब्लम होता था, बट सेबी ने इतना अच्छा काम किया है कि विदाउट डिटेल ऑफ नॉमिनी आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। सो नॉमिनेशन विल बी देयर और अगर कुछ हो जाता है तो वो पैसा स्ट्रेट वे नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है। और एक बात है, आपका ये म्यूचुअल फंड एक चीज होता क्या है, इसके बारे में भी बहुत आदमी का जानकारी नहीं है। थोड़ा म्यूचुअल फंड क्या है ये थोड़ा बताइए ना। कम देखिए, म्यूचुअल फंड मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और एक होता है जो डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आरबीआई के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जो भी आपका उनका कॉर्पोरेट का लेंडिंग हो गया, वो हो गया डेट फंड। और इक्विटी मतलब हो गया डायरेक्ट जो शेयर मार्केट में कुछ कुछ कंपनियों के शेयर बाई करेंगे। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें कम से कम जो एक म्यूचुअल फंड होता है वो 40 से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और कम से कम 8 से 10 सेक्टर जैसे बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी, इस तरह के डिफरेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहे और मेंटेन होकर आपका रिस्क को लोग कर्व करके आगे आपको बढ़ाते हैं। तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक डाइवर्सिफिकेशन है और उसमें इन्वेस्ट करने के बाद में आप अपना पैसा सही मायने में डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट कंपनियों में डाल सकते हैं। सो ये है म्यूचुअल फंड। बट जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको अपना जो ड्यूरेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्पेशली आपको 5 ईयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रख के चलना है। जनरली देखा गया है लास्ट 30 ईयर्स में जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने 5 साल होल्ड किया है तो उन्होंने आराम से 15% तक का रिटर्न पाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी पाएंगे,
बट 12 से 15% जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वो आराम से आप आने वाले समय में भी आप पाते रहेंगे फॉर श्योर। সুতরাং বুঝতে পারছেন যে 5 বছরের জন্য একটা ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা রেখে আপনি যা এখন বাজার মূল্য যাচ্ছে সেটাই ফেরত পাচ্ছেন, অর্থাৎ আপনি তার থেকে কিন্তু কোনো লাভবান হচ্ছেন না, উপকৃত হচ্ছেন না। টাকাটা এক অর্থে যদি আপনি ব্যবসার ক্ষেত্রে বলেন, কমার্সের ভাষায় সেটা হয়ে যাচ্ছে ডেড মানি। সেটাকেই যদি আপনারা মিউচুয়াল ফান্ডে দেন তাহলে পরে কিন্তু এটা 12 থেকে 15% পর্যন্ত এটা কিন্তু আপনারা প্রফিট পেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, 5টা বছর আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে এবং এই 5 বছরের মধ্যে আপনার ফ্যামিলির যিনি আপনার নিকটবর্তী মানুষ তার কিন্তু নমিনি হিসেবে তিনি কিন্তু সেটা পেয়ে যাবেন আপনার অবর্তমানে। এখন আমি আনন্দ গুপ্তাকে আরেকটা প্রশ্ন করব। আপনি এই মুহূর্তে বললেন সেটা হচ্ছে ডেট ফান্ড আর একটা হচ্ছে ইকুইটি ফান্ড। এর মধ্যে আবার বলা হচ্ছে যে ডেট ফান্ডের থেকে ইকুইটি ফান্ডেতে একটু রিস্কটা নাকি বেশি, এটা কতটা ঠিক আছে? डेट फंड कोई भी रिस्क नहीं होता है, बिकॉज डेट फंड में जो होता है वो बेसिकली आरबीआई के जो लेंडिंग पेपर्स होते हैं जो 91 डेज में आपके एक्सपायर 91 डेज में वो बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा वो कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को लेंडिंग्स देते हैं, कुछ कुछ कॉर्पोरेट्स के भी लेंडिंग्स देते हैं, बट वो बहुत ही इतने बड़े कॉर्पोरेट्स लाइक टाटा ग्रुप, अंबानी, इन सब पे इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो पर्टिकुलरली बहुत ही सिक्योर्ड रहता है। और जनरली लोग क्या करते हैं कि कम से कम 50 से ज़्यादा लेंडर्स को इन्वेस्ट करते हैं अपने पूरे फंड्स को, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो एक लेंडर्स में 2 से 3% ज़्यादा नहीं होता है, तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड रहता है और बहुत ही रिस्क फ्री करके डेट को मैनेज करते हैं। बट हाँ, डेट फंड्स में रिटर्न जो है वो 6 से 7% तक ही आपका बैठता है, तो वो इक्विवेलेंट टू कहीं ना कहीं एफडी हो जाता है। बट एफडी में क्या होता है कि आपको अगर ब्रेक करना है तो अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। बट डेट फंड में बहुत सारे डेट फंड है जिनमें कोई पेनल्टी नहीं है, आप इन्वेस्ट किए, आप 2 महीना बाद भी अगर पैसा निकालते हैं तो 2 महीने तक का जो भी इंटरेस्ट आपका एक्यूर्ड हुआ वो भी आप निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो पार्शली विड्रॉल भी कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपका रहता है जो कि एफडीज में आपके पास नहीं रहता है कहीं ना कहीं। আমেরিকান একজন দার্শনিক যার নাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, তিনি বলছেন যদি তুমি ধনী হতে চাও তাহলে সঞ্চয়ের পাশাপাশি লাভের কথাটাও ভাবো, যে কথাটা আনন্দ বললেন ঠিক সেই কথাটাই হয়েছে। কিন্তু আনন্দ একটা কথা বলুন যে 140 কোটি ভারতবর্ষের মধ্যে এখন পর্যন্ত যা হিসাবপত্র মিলছে তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র 3% মানুষ এতে ইনভেস্টমেন্ট করছেন। তাহলে বিষয়টা যদি এত লাভবান হয় এবং সরকারি এত প্রচারও থাকে তা সত্ত্বেও 3% অনলি 140 কোটি দেশের মানুষের মধ্যে, এটা কেন? क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न कितने % लोग भरते हैं इंडिया में? हाँ, नॉट इवन 5%। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया? द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी भी कितना भी इकोनॉमी बढ़ गया बट अभी भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं लगाते। एंड प्रॉब्लम ये भी है कि जो बोलते हैं कि जो वाइट मनी बेसिकली अकाउंट्स में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जो सिर्फ आपसे बैंक के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट लेगा, दे डोंट टेक इन्वेस्टमेंट इन अ कैश। सो ये भी अभी भी कहीं ना कहीं इसीलिए जितना डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी जितना डिजिटल की तरफ मूव करेगा आपके इन्वेस्टर की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। पहले आज से 10 साल पहले नॉट इवन 1% पीपल वे इन्वेस्टिंग, राइट नाउ हमारे कम से कम 4-5% इन्वेस्टमेंट हमारा जंप हुआ है, और आने वाले 5 साल 10 साल में हम बिलीव कर रहे हैं कि कम से कम 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आज अगर 1 से 5 भी हम हुए हैं तो अगर प्रॉफिट दे रहे हैं तभी तो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, और अभी 70 लाख करोड़ का इंडस्ट्री अप्रॉक्स म्यूचुअल फंड हो चुका है, तो ये एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने फायदा दिया है लोगों को और आगे आने वाले टाइम में भी देता रहेगा। এবার একটু অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতে চাইছি, সেটা হচ্ছে এটাকে তো আপনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন, যেটা ধরুন 10 বছর আগেও পুরোপুরি এটা পেশা হিসেবে মানুষ ভাবতে পারতো না। আজকের যে জেনারেশন আসছে সেই জেনারেশনের মধ্যে অধিকাংশ দেখা যাচ্ছে একটু, অন্তত আমি পশ্চিমবাংলার কথা যেটা বলতে পারি, যে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারা। কিন্তু আপনাদের মতো আপনারা চাকরি না খুঁজে এই প্রফেশনটাকে বেছে নিয়েছেন, তাহলে নিউ জেনারেশন এই পেশায় কিভাবে আসতে পারে এবং আশাটা কতটা মানে ফ্রুটফুল হতে পারে এটা একটু বলুন তো আজকে ইয়ং জেনারেশনের কাছে। देखिए पहले मैं भी आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब इन 2-3 कंपनियों में मैंने भी काम किया, लाइक एंजल ब्रोकिंग, एमके ग्लोबल, इन सब कंपनियों में मैंने 2005 से लेके 2009 तक इन कंपनियों में जॉब किया, सीखा। बट फिर मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों में जब आप काम करते हो
तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट में बायसनेस लाना पड़ता है, मतलब कंपनी जो आपको एडवाइस करेगी एकदम। वही आपको इन्वेस्टर्स लोग को कहीं ना कहीं एडवाइस करना पड़ता है, और कंपनी के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर। सो मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ आनंद फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड हम इंडिपेंडेंट एडवाइस देते हैं अपने कस्टमर्स को, कोई भी बायसनेस नहीं रहता है। तो इसीलिए जॉब छोड़ के मैं आया। और रहा आपका क्वेश्चन कि नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको जॉब नहीं करके यहाँ क्यों आना चाहिए, एज मैंने कहा कि अभी सिर्फ 5% इन्वेस्टर इंडिया में जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो 15 से 20% आने वाला है। सो और भी हमारे जैसा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स इंडिया में बहुत ह्यूज लाखों में रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आप ये प्रोफेशन चूज करते हैं तो आगे जाके आप भी इन्वेस्टर्स को गाइड भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपना भी फ्यूचर अपना अच्छा बना पाएंगे। मेरे पास जो आंकड़ा है 2016 से 2017 इसमें 43,921 करोड़ रुपया का बिजनेस था इसमें। अभी देखा जाता है 2025-26 में 1,09,053 करोड़ रुपया का इस साल में इसमें आया है। तो परसेंटेज बढ़ा, उसीलिए तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा ना। अच्छा, अभी बताइए जो इंडिया का जो सिचुएशन अभी है, इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है उसमें तो इन्वेस्टमेंट होता है, तो कंपनी में इन्वेस्ट होता हुआ से पैसा आता है तो पब्लिक को दिया जाता है। उसका हाल अभी का, इसका हिसाब से अगला 5 साल जो हिसाब आप दे रहे हैं उसमें आप क्या दिखाई दे रहा है आपका? देखिए, आने वाला 5 साल ब्राइट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं क्या म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, कि इंडिया में जो टॉप 500 कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा, बिरला, अंबानी, जितना भी उनका कंपनीज है, तो ग्लोबली कितना भी हो उनका सेल्स उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। वो इतना ज़्यादा अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं। आज मारुति का गाड़ी बिके गई, एशियन पेंट का पेंट बिकना ही है, क्योंकि सबको अपने घर में पेंट करेंगे ही। गाड़ी आप लेंगे ही, स्कूटी आप खरीदेंगे, बाइक आप खरीदेंगे, हेवेल्स का तार आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, देखता है कि कौन सी कंपनियां हैं जो टॉप 500 कंपनीज है जो कि स्टेबल्ड है, उनका सेल्स, उनका बिजनेस ग्रोथ स्टेबल, उन कंपनियों में ही जनरली इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आने वाला 5 साल ये सारी कंपनियां ग्रो होने वाली है, बिकॉज मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज के डेट में हम लोग मोबाइल में ऑलमोस्ट चाइना को बीट कर दिया है, मोबाइल एक्सपोर्ट में इंडिया ने ऑलमोस्ट बीट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। सो ये इन सारी कंपनियों का अच्छा होगा तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा होगा और रिटर्न्स भी बनेगा। और अभी तो सबसे बड़ा जो IMF जो बॉडी है वर्ल्ड का, उसने बोला है कि जो टैरिफ का वॉर चल रहा है उसके बाद में भी देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उन्होंने अपना GDP को, इंडिया का GDP 6.4% से ग्रो होते रहेगा। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। এবার আপনার কাছে যে প্রশ্নটা আমি রাখতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আপনি মিডল ক্লাসের কথাটাই বারবার বলছেন। মিডল ক্লাসের অনেকগুলো প্রবলেম আছে। প্রথম প্রবলেম হচ্ছে যে তার যা রোজগার, সেই রোজগার থেকে সংসার খরচা চালানো, ডাক্তারের খরচা চালানো, মেডিক্লেম দিতে হবে, LIC দিতে হবে, ব্যাংকে কিছু টাকা রাখতে হবে, এত কিছু জায়গায় দেওয়ার পর ফিক্সড ডিপোজিট করতে হবে, এটা করতেই হবে। তারপরে এখন একটু মিউচুয়ালটা ভাবা যেতে পারে। তা সেক্ষেত্রে টাকার অ্যামাউন্ট ছোট অ্যামাউন্টেও কি মিউচুয়াল ফান্ড হতে পারে? আর বড় অ্যামাউন্টে তো হয়ই, ছোট অ্যামাউন্টে কিভাবে মিউচুয়াল ফান্ডে আসা যেতে পারে? देखिए, जो आपने बोला कि ऑलरेडी इतना सारा एक्सपेंडिचर्स मिडिल क्लास का रहता है तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए उसका एक ही फॉर्मूला है। से फॉर एग्जांपल अगर आप महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं तो सीधा आपको 5,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है और 45,000 में ही खर्चा चलाना है। वो एक कॉन्सेप्ट अगर आप बना लेंगे तो आपका बजट सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? यू कैन इवन स्टार्ट विद 500 रुपीज़ अ मंथ। इतना लोवेस्ट अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। सो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बट एज मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो भी इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, इट्स फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। अगर आप 5 ईयर्स टाइम दे सकते हैं, द रिटर्न, योर रिटर्न विल बी देयर। दैट्स द की। এত কিছু কথার পরেও কিন্তু একটা কথা থেকে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে জীবনে অঙ্ক একটা বিশাল ব্যাপার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রোজগারের টাকা সঠিকভাবে কিভাবে ব্যয় করবেন এবং সেই ব্যয়টা যেন আপনার জন্য পজিটিভ হয়, অর্থাৎ জমছে কত, সেই বিষয়টাও আপনাকে ভাবতে হবে। কিন্তু আপনার সারাদিন জীবনের যে লড়াই, তাতে এত কিছু আপনাকে ভাবতে হয়, এটাকে সায়েন্টিফিক্যালি ভাবা আপনার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।
তার জন্য আপনার জীবন যুদ্ধের যে খেলা আপনি খেলছেন, মানে খেলা হবে, সেই খেলার কিন্তু একজন কোচ দরকার হবে। সেই কোচ হিসেবে কিন্তু আপনাদের কাছে রয়েছেন আনন্দ গুপ্তা। এর সঙ্গে যদি আপনারা একটু যোগাযোগ করেন তাহলে আপনার সঞ্চয় পরিকল্পনা, আপনার পারিবারিক স্থিতি, আপনার আর্থিক স্থিতি, আপনার দায়বদ্ধতা, এই সব বিষয়টা কিন্তু একজন ডাক্তার যেভাবে জিজ্ঞাসা করেন উনি সেইভাবেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এবং তার যে রেমেডিটা হবে সেই রেমেডিটাও কিন্তু আনন্দ আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন। হাতে আমাদের সময় খুব কম আছে, এর মধ্যে আপনারা ইচ্ছে করলে সরাসরি যদি কোনো প্রশ্ন আনন্দকে করতে চান তাহলে যে নিচে ফোন নাম্বার যাচ্ছে সেখানে আপনারা ফোন করে এখনই ফোনে তার কাছে প্রশ্ন করে নিতে পারেন। আর যদি পরে ফোন করতে চান তাহলে আনন্দ গুপ্তার নিজের যে ফোন নাম্বারটা আছে দেখুন 8017991044, এই নাম্বারটা নোট করে রাখুন। যখন খুশি আপনি আনন্দকে ফোন করে আপনার সমস্যার কথা বলবেন এবং আপনি কিভাবে আপনার জীবনের পরিকল্পনাটা সাজাতে চান একদম পারফেক্ট পরামর্শ কিন্তু আনন্দ আপনাকে দিয়ে দেবে হাসি মুখে। যে কোনো সময় আনন্দকে আপনারা ফোন করতে পারেন। শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যাচ্ছি, হাতে খুব সময় কম আছে। সেটা হচ্ছে যে আমি ফিরে যাচ্ছি তাদেরই কথায় প্রথমে, সেটা হচ্ছে যারা অবসর নিয়েছেন, বয়স্ক মানুষ রয়েছেন, তাদের সবসময় মাথায় একটা চিন্তা থাকে যে বিপদে পড়লে একমাত্র পয়সাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আজকাল যে চিকিৎসার খরচা দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে ধরুন এই মেডিক্লেমের টাকা সেটা যেভাবে হাতে চলে আসে, একজন মেডিকেল ক্লেমের যে এজেন্ট থাকে তার সঙ্গে কথা বলার পর, সেই সময় যদি আমার টাকা দরকার হয় কিন্তু আমি 5 বছর রাখতে পারছি না, সেক্ষেত্রে তারা ওই বিপদের সময় কিভাবে তারা ওই টাকাটাকে পেতে পারে, এটা যদি একটু বলে দেন। मैंने बोला कि 5 साल आपको रखना है अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, बट कभी भी कोई भी इमरजेंसी आता है तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ विद इन 2 डेज यानी कि 48 आवर्स के अंदर में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और आपको इमरजेंसी के लिए 1 लाख विड्रॉ करना है तो यू कैन विड्रॉ। आज के डेट में T+2 यानी कि 48 आवर्स में आपको पैसा वहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल तक का पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा एक और ऑप्शन है, जो लोग यंग है, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया और उनका म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो उसको प्लेज करके भी पैसा उठा सकते हैं। उनको 9% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, उसको प्लेज करके भी पैसा लेके टेम्प्रेरी काम के लिए 6 महीना वापस से उस प्लेज को पेमेंट कर दिया और आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो वो ऑप्शन भी आ चुका है ऑलरेडी। बजाज और टाटा कैपिटल एंड देयर मेनी कंपनीज जो कि प्लेज करके पैसा देते हैं। सो वी हैव मतलब हमारे पास बहुत सारे बिजनेस इन्वेस्टर्स है जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके इन्वेस्टमेंट है, बट समहाउ कभी बिजनेस में उन्हें जरूरत पड़ती है कि 50 लाख रुपए चाहिए तो वो उसको ब्रेक नहीं करते हैं, उसको प्लेज कर देते हैं, पैसा लेते हैं टेम्प्रेरी यूज़ करके, देन दे रिफंड, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी बना रहता है और उनका काम भी रहता है। और सेम अगर किसी को नहीं प्लेज करना है और पैसा उठाना है तो आप विद इन 2 डेज म्यूचुअल फंड से पैसा आप आराम से निकाल सकते हैं। और जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि सब कुछ इक्विटी में रखते हैं, हम लोग डेट फंड में भी प्लानिंग करते हैं ताकि वो डेट फंड तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। सो जो भी इन्वेस्ट करेंगे 20-30% पैसा उसका डेट फंड में रहता है क्लाइंट्स का, तो वहां से भी हम टेक आउट कर सकते हैं। अच्छा, नए नए जो लोग माँ बाप बने, इसको आप क्या बताइएगा जो शुरू से बच्चे लोगों को ये पैसा संचय करने का जो मेंटली प्रिपरेशन एक कैसे देना चाहिए माँ बाप को? देखिए, जो भी आज के डेट में माँ बाप बनते हैं हम तो बोलेंगे एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। उनके जरूर, बच्चों को आप कुछ दे या ना दे, एजुकेशन दीजिए, और उसमें भी हायर एजुकेशन। तो जब भी जैसे आप पेरेंट्स बनते हैं आपके पास 18 साल रहता है उनका हायर एजुकेशन के पहले में, उनके नाम पे कुछ ना कुछ SIP करके छोड़ दीजिए म्यूचुअल फंड्स में। आप 18 ईयर्स में उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक आप बना सकते हैं और उससे उनका हायर एजुकेशन का पूरा काम हो जाएगा। इससे अच्छा और कोई टूल नहीं है, बिकॉज इसमें 18 साल तक टाइम रहता है, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। আজকে যেটুকু আমাদের সময় ছিল এই সময়ের মধ্যে আমরা কথা বলে নিয়েছি। বোধহয় কি এটা কোনো ফোন আছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, গুড আফটারনুন। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। দেখুন, আপনাদের প্রোগ্রামটা দেখছিলাম, খুব ভালো লাগছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো মধ্যবিত্ত ঘরের ফ্যামিলি থেকে বিলং করি, আমাদের আর্থিক অতটা স্ট্রং নয়, বুঝতেই পারছেন। তো আমরাও যে আমাদের ইন্টারেস্ট আছে এই মিউচুয়াল ফান্ড রিলেটেড বা শেয়ার মার্কেট রিলেটেড এই সমস্ত। তো আমি একটা জানতে চাইছিলাম যে মানে এটা কতটা রিস্কেবল জায়গা আর কি, মানে যদি ধরুন এই সমস্ত এইগুলোতে ইনভেস্ট করা হয় আর কি। सर देखिए, रिस्क इसमें क्या होता है कि अगर आप सिर्फ अपने पैसों को 5 साल तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड कम से कम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है मिनिमम। तो कभी कभी क्या होता है कि
थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट कभी कभी ऊपर नीचे करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा टाइम अगर आप दे देंगे ना तो वो टाइम में वो रिस्क को कवर कर लेता है। तो अल्टीमेटली अगर आप 5 ईयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो देयर इज नो रिस्क एट ऑल, एक्चुअली कोई भी रिस्क रहता नहीं। अगर आप ढंग से फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं तो आपका रिस्क को हम लोग पूरा अवॉइड कर सकते हैं 100% तक। मतलब आप बोलने मांग रहे हैं कि मेरे को एटलीस्ट 5 साल के लिए उम्मीद करके रखना पड़ेगा, 5 साल मेरे को पैसा रखना ही पड़ेगा वहाँ पे, यस है ना? यस यस, तभी आपका पैसा इसमें अच्छे से ग्रो हो पाएगा और रिस्क भी अच्छा, पूरा अच्छा। नुल एंड वॉइड, ऑलमोस्ट नुल एंड वॉइड आप कर पाएंगे रिस्क को। এবং সেটা তো- ফিক্সড ডিপোজিটের থেকে বেশি হচ্ছে। यस, और आपका फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न आपका सिर्फ 6% आएगा। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा आपका 12 से 15% जो देखा गया है आने लास्ट 20 साल में जो हुआ है कि 12 से हाँ। 15% रिटर्न बन जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप अच्छा। फाइनेंशियल एडवाइजर का गाइडेंस के थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पे आराम से आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई लामसम अगर कोई माने जमा करते हैं, मतलब एक इकट्ठा अगर जमा करते हैं तो उसी क्षेत्र भी तो 5 साल का हो गया है। Yes। लेकिन अगर कोई रेगुलर बेसिस में अगर करने मांग रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब उसमें क्या सिनेरियो हो सकता दोनों में है? सेम सर, आप चाहे एसआईपीज के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें एवरी मंथ या वन टाइम डालें, दोनों में अपना अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम 5 साल रख के चलिए तो उसमें आपका रिस्क को आप बहुत नेविगेट करके आराम से निकल कर आप पैसा बना सकते हैं सेफली आप ओके, अगर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরে আরো কিছু কোয়ারি থাকলে পরে আনন্দের যে ফোন নাম্বার যাচ্ছে সেই ফোন নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে আরো বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। জানার কিন্তু অনেক কিছু আছে, এখানে কিন্তু একটা ভীতি রয়েছে যে মিউচুয়াল ফান্ড মানেই বোধহয় ঝুঁকি, মোটেই তা নয়। সেটা আনন্দ আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে আরও ভালোভাবে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে। তাও আজকে আনন্দ আমাদের সময় সীমা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি। ফেস টু ফেস অনুষ্ঠানে আগামী সপ্তাহে শনিবার বেলা 2টায় আবার একটি নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আশা করি সেই বিষয়টিও আপনাদের খুব জরুরি হবে। নমস্কার। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে।